dignitaries in the audience, faculty and staff of MCM DAV College and other colleges who are here to participate in this zonal cultural event, students of the participating colleges as well as MCM DAV College. It's my pleasure to be here on the inauguration of this Zonal Youth Festival, and it is great that 7 colleges are here for participating in this event. And the reason these activities are organized is that we are trying to provide a platform where students are able to learn beyond the academic environment, and we want that you should have a holistic education and your overall personality development process should be such that by the time you complete your education, you are balanced individuals. So in the academic environment, you are learning whatever courses you have taken admission in, but education is more than academics. It is about other activities that go along with educating the youth, and one such activity is this activity where you will be having competitions for cultural activities, for writing, for speaking. And when we are participating in such competitions, I know that students as well as teachers, they put in a lot of effort to prepare the students, and everybody wants to win the competition. But everybody obviously cannot win the competition. So, some teams or some students are going to win the events that will be organized. But others that are not able to win, it is not that they haven't done well or they haven't prepared well. But then, a competition is a competition, and whosoever wins is actually not in the hands of the participants. Just now it was mentioned that Punjab University got NAC A++ grade, and while we were preparing for NAC visit, faculty and staff, they used to discuss among themselves, that what is our expectation, whether we want A grade or we want A+. So they would be asking me that what are you thinking, what grade we are going to get. I said, getting the grade is not in our hands actually. It depends upon the evaluators. It depends upon the documents that we have submitted. What we have to do is we have to put up our best show. We have to try our best. So as students also, that has to be the principle of our life, that we have to put in our best effort. We have to try our best. Whatever we do, we should do it to the best of our ability. And whatever is the outcome, we also should have the ability to accept that. So we say, that sportsmanship is this, that sportsman's spirit is this, that a team who has lost should be able to congratulate the team that has won, and the team which has lost should be able to accept its defeat. So same is the state of these competitions, that we have to participate, we have to do best of the rehearsal, we have to put in our best of effort, and then we should have the ability to congratulate the teams or the students who have won, and we just have to accept that this time we haven't won, but surely if we keep on trying, there will be a time when you will also win. Maybe next time will be yours. So we just have to keep on trying, and practice makes the man perfect, So
we should consider what are our weaknesses and we need to improve upon that. So, you know, instead of wasting your time in trying to find fault with others, best thing is to look at yourself, look at our strengths, look at our weaknesses, and we should try to overcome our weaknesses. We should try to strengthen our strengths so that, you know, we are in a better position when next time such competitions are organized. And I am sure that each day is different and each competition is different, and कभी किसी का टर्न है जीतने का तो कभी दूसरे का है, तो सबकी बारी कभी ना कभी तो आती ही है अगर हम कंसिस्टेंटली एफर्ट करें तो। और सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष गुरुओं का, स्वामियों का देश है। हमारे भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट गुरु स्वामीज हुए हैं और डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं हमारी कंट्री में, मगर टीचिंग सभी की सेम है। अगर हम किसी भी स्वामी, गुरु, रिलीजन की टीचिंग्स देखें तो वो एक जैसी ही हैं। वो यही है कि हम जो भी करें, यू नो, वी मस्ट फॉलो ethical practices, we must be truthful, we must be honest, और सच्चाई और ईमानदारी की राह पे जो चलते हैं उन्हें जीत ज़रूर हासिल होती है, ये तो मेरा विश्वास है। और सब हमारे जो गुरु हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं। रिसेंटली गांधी जयंती भी थी और उससे अगर हम गांधी जी की भी टीचिंग्स को देखें तो वो भी यही है कि वी शुड बी ट्रू टू आवरसेल्व्स, ट्रू टू अदर्स, और ईमानदारी हो और दूसरों को बदलने की बजाय हम खुद को बदलने पे फोकस रखें। क्योंकि ज़्यादातर हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं तो परफेक्ट ही हूँ, मगर परफेक्ट तो कोई नहीं है। और कबीर जी का दोहा सब जानते हैं कि बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो हन अपना झांक्यो मुझसे बुरा ना कोई। तो हम सब में कोई ना कोई शॉर्टकमिंग्स होती हैं और हमारा जो ध्यान है वो खुद को बदलने पे ही होना चाहिए। और हम सब अगर ऐसा सोचें तो फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर कोई अपने पे फोकस कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहा है। तो जब एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये भी एक स्टेप है इन दैट डायरेक्शन ओनली, कि बच्चों को भी हम टीम वर्क सिखा रहे हैं कि कैसे टीम्स में काम करें। और टीम्स की सफलता की बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आज जो भारत की उपलब्धि है, चंद्रयान 3 जो हमने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की, उसी की है। अगर आप सबने सॉफ्ट लैंडिंग देखी होगी टेलीविज़न में कि इसरो की जो टीम है वो कितनी बड़ी टीम है, तो वो इतनी बड़ी टीम है और उनमें भी आपस में हो सकता है मतभेद हो, मगर दे आर एबल टू राइज अबव देयर डिफरेंसेस एंड वर्क फॉर अ कॉमन मिशन। तो उनका जो कॉमन मिशन था स्पेस का, उसमें उन्होंने कामयाबी पाई इतनी बड़ी टीम ने। तो टीम वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें बहुत सारी स्टूडेंट्स की टीम्स इन्वॉल्व होती हैं in participating in the competitions, in organizing these competitions, and the students are being mentored by their faculty. फैकल्टी भी टीम वर्क करती है। और ये जो हम इतना बड़ा 3 दिन का शो यहाँ देखने जा रहे हैं, ये भी आउटकम है ऑफ ग्रेट टीम वर्क। तो इस तरीके से ही अगर हम हर प्रोजेक्ट या मिशन के लिए टीम वर्क करें, अपने पर्सनल डिफरेंसेस से राइज अबव करके,
तो आई एम श्योर कि हर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इट कैन अचीव ग्रेट हाइट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी की अच्छी ग्रेडिंग आई है, हम चाहते हैं कि सब जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनकी भी अच्छी ग्रेडिंग आए, वो भी एक अच्छा टीम वर्क करें और आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। MCM DAV कॉलेज तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कॉलेज है हमारे शहर का और हर कोई इसके बारे में जानता है। तो जब हम स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ाई लिखाई और ये कॉम्पिटिशन्स तो सब चलते ही हैं, मगर साथ में बच्चे शरारतें भी करते हैं। और जब मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी तो हम लोग भी शरारतें किया करते थे, तो टीचर्स हमें डांटते भी हैं। हमारे एक टीचर थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे, आज इस दुनिया में नहीं है, पर हम जब भी कोई गड़बड़ करते थे तो वो एक एक बच्चे को क्लास में खड़ा करके 10-10 मिनट का भाषण देते थे। और मुझे तो वो हमेशा यही कहते थे कि तुम तो क्लास की टॉपर हो, तुमने ये कैसे किया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हम चुपचाप सुनते रहते थे। तो एक मेरी क्लास में संजय गुप्ता भी पढ़ते थे, अभी भी वो मेरे क्लास फेलो है। हम एक्चुअली अब जब भी बैठते हैं हम उन टीचर्स को, उन क्षणों को याद करते हैं और हंसते हैं कि हमें कितनी डांट पड़ा करती थी। तो संजय गुप्ता MCM DAV कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मिसेस स्नेह महाजन उनके बेटे थे। तो जब संजय गुप्ता को डांट पड़ती थी क्लास में तो यही डांट पड़ती थी हमेशा कि तुम तो MCM DAV कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो अभी भी जब हम बैठते हैं हम उसको यही पूछते हैं कि तुम ये कैसे करते थे। तो ये कुछ मतलब जो हम शरारतें करते हैं, टीचर से डांट पड़ती हैं, ये जो मेमोरीज हैं ये हम उम्र भर के लिए हमारे साथ रहती हैं। और आज जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ने हम सबको कनेक्ट कर दिया है। और आप लोग भी जब एज यू नो ग्रो अप इन योर लाइफ यू विल रियलाइज़ कि जो एसोसिएशंस कॉलेज में हम बनाते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, ये ट्रू फ्रेंड्स होते हैं और ज़िंदगी भर के ये हमारे साथी होते हैं। आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद भी आप पाओगे कि यही लोग आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। और व्हेन यू लुक बैक तो इन मेमोरीज़ को आप याद करोगे, इट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, टू बी हैप्पी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सबको शक्ति दे और सम्मति दे ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब रहें और अच्छा काम करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।